Hi everyone. In the last class, we have discussed about the evaluation Of the nursing subject of the management. nursing management. So today we So will today we discuss remaining will the discuss topic of remaining the topic evaluation. of the evaluation. Let's start the Let's evaluation. start the Evaluation evaluation. means Evaluation means it is a process it is a of process judging the of person's judging value, the person's merit, value, or worth. merit It is the or one worth. of the It is the one of the decision-making process decision making where we process can identify where some of we can the identify some of characteristics or features of the or person features of the against person of his against standard of and his policies so policy that it can be that evaluated can be. truly. So here, So here, some of the part we have some of the discussed part we have already. discussed We will already. review something We will review something like like introduction, introduction, definition, definition, meaning, meaning, then purposes, then purposes, and evaluation and evaluation process. Evaluation process evaluation and process, components of and the components evaluation, of the evaluation, application of the evaluation in application the of the management, evaluation in the management, and types of evaluation and is types of already covered. evaluation is So already next we covered. see the So management next we see the principles in the management evaluation. principles in The the management evaluation. की principles जो management है principles principles of जो है management principles of in the management evaluation in the क्या evaluation है? क्या है? So So some of some the of the principles are principles are planning, planning, setting goals, setting goals, objective, and objective, and motivating motivating employees, employees, delegating delegating authority, authority, performance performance evaluation, evaluation, organization evaluation. organization So evaluation. these So all these all principles in principles the in the evaluation. evaluation. So in the So in the planning, planning, manager manager responsibility responsibility to to plan plan day-to-day day-to-day activities of of an an of organization. an organization. So planning के अंदर क्या तो है? प्लानिंग के अंदर एक क्या है? मैनेजर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर की बनती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बनती है ऑर्गेनाइजेशन की कि ग्रोथ के लिए ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ मैनेजर के को लिए डे मैनेजर टू को डे एक्टिविटी डे को टू डे प्लान करने एक्टिविटी की को प्लान करने जिम्मेदारी की होती है जिम्मेदारी होती है जो कि वो जिस किस प्रकार तरह उन्होंने जो गोल जिस बनाए, प्रकार उन्होंने हाउ गोल ही बना वांट है, टू हाउ अचीव, यू हाउ वांट ही टू विल अचीव, अचीव द हाउ गोल, यू विल अचीव द किस गोल, तरह उन कि किस गोल्स तरह को उन उसको गोल्स अचीव को करना है, अचीव जो करना उसको है, एम जो बनाया उसको है, एम उसको बनाया सर पर प्लान करना है, प्लान करना तो है, उसके रिगार्डिंग तो उसके रिगार्डिंग एक मैनेजर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर की होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लानिंग के होती है। अंदर there are प्लानिंग different के अंदर tasks जो देयर आते आर हैं। डिफरेंट फर्स्ट टास्क है जो आते हैं। प्लानिंग फर्स्ट है इंक्लूड्स प्लानिंग टारगेट्स, इंक्लूड पर्सनल टारगेट्स, मैनेजमेंट, पर्सनल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, प्लान। स्ट्रेटेजिक सो प्लानिंग प्लान। के अंदर सो टारगेट है, प्लानिंग के उसका अंदर एक पर्टिकुलर टारगेट है, टारगेट उसका एक फिक्स होता है पर्टिकुलर टारगेट कि फिक्स होता उतना है कि टारगेट हमें उतना कंप्लीट टारगेट करना है, हमें एवरी कंप्लीट डे करना कंप्लीट है, करना एवरी है, डे ईयरली कंप्लीट करना है, बेसिस ईयरली कंप्लीट करना है, बेसिस कंप्लीट मंथली करना है, बेसिस मंथली कंप्लीट बेसिस करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है, ठीक है, वीकली कंप्लीट वीकली करना है। कंप्लीट एक करना है। एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर टारगेट टारगेट he ही विल फिक्स in their इन mind देयर and he will माइंड एंड ही complete विल it. कंप्लीट इट। So personal तो management, पर्सनल मैनेजमेंट को किस तरह मैनेजमेंट करना है? personal पर्सनल management मैनेजमेंट का मतलब होता है मतलब होता जो है भी कि जो पर्सनल भी पर्सनल उस उस जो गोल बनाए हैं गोलों उन को गोल को करने फुलफिल में करने हेल्प में करते हैं। हेल्प करते हैं Other other employees, employees. just like other Just employees, like other they are employees, they are helping helping to achieve to the achieve goal the goal of the of the organization organization successfully. successfully. So So in that in that personal personal management, management, strategic planning का strategic मतलब होता planning है का मतलब होता है strategic कि planning strategic डायरेक्टिव planning is प्लानिंग the होती है directive हाउ टू planning अचीव होती द है गोल, how to हम किस achieve the तरह goal. उन गोलों को हम अचीव किस करना तरह चाहते उन हैं, गोलों ये को अचीव डायरेक्शन के करना अंदर चाहते होती हैं, है, ये डायरेक्शन के अंदर डायरेक्शन होती है। प्लानिंग। This is the So this is direction the planning. directive planning, how So to this is achieve the the goal directive planning, by how to means of achieve the resources. goal We are by getting the means some of of the resources. resources We are from the getting the some of the outside resources from the or from the outside organization. So we want or to from achieve the the goal, that is organization. known So as we want to achieve the strategic goal, planning. that is known as So next, strategic plan. manager can So next, motivate the manager staff to can meet the motivate the goals staff to and meet the objectives. goals and जो objectives. मैनेजर जो होता है मैनेजर वो होता अपने है स्टाफ वो को अपने स्टाफ को गोल्स एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव के प्रति ऑब्जेक्टिव के प्रति मोटिवेट करता है मोटिवेट कि करता उनको है कि कैसे उनको कैसे सक्सेसफुली सक्सेसफुली अचीव करना अचीव है. सो करना दिस है. द सो प्लानिंग. दिस द प्लानिंग. नेक्स्ट विल सी द नेक्स्ट विल सी सेटिंग द गोल्स एंड सेटिंग ऑब्जेक्टिव. गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. जो हमारे जो गोल्स हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव हैं उनको सेटिंग किस तरह करना सेटिंग पड़ता है. करना पड़ता है. मैनेजर आल्सो मैनेजर रिस्पांसिबल ऑल्सो फॉर रिस्पॉन्सिबल कंट्रोलिंग फॉर कंट्रोलिंग एक्टिविटीज द विद इन देयर एक्टिविटीज विद इन एरिया. देयर एरिया ऑफ अथॉरिटी. मैनेजर एक मैनेजर एक रिस्पांसिबल पार्ट होता रिस्पॉन्सिबल है पार्ट जहां होता पर है जहां पर जो उसकी अथॉरिटी जो उसकी होती है अथॉरिटी एरिया के होती अंदर, है एरिया के अंदर, उसको उस उसको एरिया के उस अंदर एरिया के अंदर उन एक्टिविटीज हैं उनको जो किस तरह एक्टिविटीज कंट्रोल हैं उनको करना. किस तरह कंट्रोल Is करना a है. manager इज अ is मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल. they must set the They standard must using the set the objective standard of an using the organization. objective of an किसी भी organization. ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी ऑब्जेक्टिव को यूज ऑर्गेनाइजेशन के करके ऑब्जेक्टिव को यूज करके सेट स्टैंडर्ड जो सेट होते हैं उनको सेट स्टैंडर्ड करना. जो होते हैं उनको सेट करना. देन Then results are monitored results on are a regular monitored basis on a basis regular to see if the basis to objective see are if the being objective met. are being जो ऑब्जेक्टिव met. उसने जो बनाया objective according to the उसने बनाया organization, according to the he will organization, see he will and he see will and monitor he will monitor all the all the on regular the basis regular whether basis, it
whether it is achieving or not, so that he will be monitored or the objective are being met
or not on the regular basis. Sometimes corrective measures have to be put in place to make sure ऑब्जेक्टिव आर मेट इन द फ्यूचर। जो ऑब्जेक्टिव उन्होंने बनाए हैं वो करेक्टिव मेजर्स जो है उनको हम फ्यूचर के अंदर भी यूज कर सकते हैं, फ्यूचर के अंदर भी यूज कर सकते हैं। जो हमारी फ्यूचर रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करेंगे या नहीं करेंगे, उनके अंदर हम सबसे पहले उनको करेक्टिव मेजर्स की तरफ ले जाते हैं। उनको यदि उनके अंदर कोई वेरिएशन है उन वेरिएशंस को करेक्ट करके एक परफेक्ट ऑब्जेक्टिव डेवलप करके, एक ट्रू ऑब्जेक्टिव डेवलप करके हम उनको फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। नाउ विल सी द मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज। हमें एम्प्लॉइज को किस तरह मोटिवेट करना। A manager needs to cooperative staff। मतलब एक मैनेजर को चाहिए एक कोऑपरेटिव स्टाफ होना चाहिए, जिससे कि हम वो अपने जो गोल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो गोल है उनको वो कम्प्लीटली अचीव कर सकते। मैनेजर कैन मोटिवेट द एम्प्लॉइज विद देयर वर्ड्स, एक्शन एंड डीड्स। मैनेजर क्या करता है, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करता है अपने शब्दों में, अपने एक्शंस के अंदर, अपने डीड्स के अंदर। डीड्स का मतलब होता है एक्शन परफॉर्म इंटेंशनल। जो एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर जो उसने गोल जो बनाए हैं और जो उन गोल के बिहाफ पे जो एक्शन कर रहा है वो उसमें इंटेंशनली उनको डेवलप कर रहा है नहीं कर रहा है, कॉन्शियसली उनको डेवलप कर रहा है नहीं कर रहा है। दैट इज इंटेंसिव वे। इंटेंसिव वे में उनको कैसे डेवलप कर रहा है, दैट इज नोन एज डीड्स। उसको डीड्स में डेवलप करना। ऐसे एम्प्लॉइज को मोटिवेट करता है अपने शब्दों के अंदर, अपने एक्शंस के अंदर और अपने डीड्स के अंदर। देन दे कैन इंस्पायर एंड एनकरेज एम्प्लॉइज ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम, हेल्प देम टू रीच देयर फुल पोटेंशियल। इस कंडीशन में दूसरे एम्प्लॉइज जो होते हैं उनको इंस्पायर करना, एनकरेज करना उनके डिफिकल्ट टाइम के अंदर, जैसे कि जो गोल है वो फुल पोटेंशियल तक पहुंचे। एक गुड डायनामिक एक्टिविटी और गुड डायनामिक एक्शन को डेवलप कर सकते हैं। फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पोटेंशियल इज नोन एज फुल ऑफ एनर्जी। दे विल यूज फुल ऑफ एनर्जी टू डेवलप एंड टू अचीव द गोल सक्सेसफुल। This is motivating. How to motivate the employee? नेक्स्ट द डेलीगेटिंग अथॉरिटी। डेलीगेटिंग अथॉरिटी का मतलब होता है कि अपने काम को किसी दूसरे अदर एम्प्लॉइज है, उन एम्प्लॉइज जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उन सबऑर्डिनेट्स को मैनेजर अपनी किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। ही इज गिविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फुलफिल ऑल द क्राइटेरिया, फुलफिल ऑल द ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और गोल, so that it can be achieved in effective manner. So manager organize the activity of an organization by delegating the authority. Manager organize करता है activity of the organization के अंदर, जैसे कि वो अपनी जो काम की जो जिम्मेदारी है वो दूसरों को अथॉरिटी के रूप में दे सकते। Certain activities, duties and responsibilities can be carried out by the junior employees. कुछ एक्टिविटी जो होती है, जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के रूप में जूनियर एम्प्लॉइज के द्वारा क्या होती हैं, कैरिड आउट। A manager is responsible for the span of control, which may be as many as 25 to 35 subordinates, depending on her. Span of control का मतलब होता है area of activity and number of functions, people of or things for which an individual or organization is responsible। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी एक्टिविटी के अंदर या किसी भी फंक्शन के अंदर या पीपल जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं उनके अंदर, या जो भी उन चीजों में जो रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं उनके अंदर, या जो पर्सन यूज हो रहा है उसके अंदर एक अथॉरिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दिस इज नॉन एज स्पान ऑफ कंट्रोल। हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो एक मैनेजर के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किस हद तक इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। So which may be as many 25 to 35। उसके अंडर में 25 to 35 सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उनको किस तरह कंट्रोल करना है, ठीक है, जो डिपेंड्स करता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकती है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का मतलब होता है इवैल्यूएट करना परफॉर्मेंस। जैसे कि पिछली बार हमने पढ़ा था परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर, जो अप्रेजर होता है
अप्रेजर का मतलब होता है जैसे मैनेजर है, डायरेक्टर, उन चीजों को असिस्ट करता है, फाइंड आउट करता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट की जो चीजें होती हैं एम्प्लॉय के अंदर, उनको वो डेवलप करता है और डेवलप करने के बाद उनको करेक्ट करता है अपने वे में। ठीक है, किस तरह उसके अचीव डे बाय डे अचीव हो रहे हैं नहीं, दैट डिपेंड्स। एनुअली बेसिस को सर्वे करना, देखना, एनुअल बेसिस होता है या वीकली होता है या मंथली होता है, मंथली बेसिस पे भी कर सकता है। तो एम्प्लॉइज रिसीव द परफॉर्मेंस अप्रेजल यूजुअली ऑन एन एनुअल बेसिस एंड मैनेजर मस्ट एडमिनिस्टर देम इन द प्रोफेशनल मैनर। उनको प्रोफेशनली मैनर के रूप में उनको क्या करना है, स्पॉन्सर करना है, एडमिनिस्टर करना है, एंड हाउ ही इज गेटिंग द परफॉर्मेंस अप्रेजल टुवर्ड्स द अगेंस्ट द एम्प्लॉय, कि किस तरह वो अपने काम में उसके प्रति कितना कर रहा है, उस चीजों को अचीव कर रहा है नहीं कर रहा है, उनको परफॉर्म को देखना। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होता है हेल्प द मैनेजर एड्रेस द परफॉर्मेंस प्रॉब्लम एज वेल गिव द रिकॉग्निशन एंड एम्प्लॉयज गो अबव एंड बियॉन्ड द कॉल ऑफ। कई बार क्या होता है कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर दो कंडीशन डेवलप होती है, एक तो आपकी होती है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिविटी क्या होती है कि हमेशा एम्प्लॉयज को ऊपर की तरफ ले जाती है और नेगेटिविटी हमेशा क्या करती है, पर्सन को नीचे की तरफ ले जाती है। ठीक है, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अधिकता से ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको एक टाइम दे दिया गया, उस टाइम के अंदर काम नहीं करते। ठीक है, उनकी नेगेटिविटी एक डेवलप करती है। जैसे कई बार बताया जाता है कि काम को अपने समय में पूरा करो। ठीक है, अब यदि हम अपना काम समय पर पूरा नहीं करेंगे तो वी आर नॉट गेटिंग अप्रेशिएशन। उससे अधिक हमारे अंदर एक ऐसी इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम उस काम को ज्यादा करें, जिससे कि हमें मैनेजर, सामने वाला मैनेजर गुड अप्रेजल के रूप में देख सके और हमारे प्रमोशन के अंदर वो हेल्पफुल। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल हेल्प मैनेजर, जो मैनेजर को हेल्प करता है। देन इफ देयर इज ए परफॉर्मेंस इश्यू, यदि कोई भी परफॉर्मेंस इश्यू आता है, नेगेटिविटी आती है, मैनेजर कैन एस्टैब्लिश ए प्लान ऑफ एक्शन। उसके लिए मैनेजर एक प्लान ऑफ एक्शन डेवलप करता है। जो पर्सन के अंदर नेगेटिव वेरिएंस होते हैं उनको क्या करता है, एरेडिकेट कर निकालता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल आल्सो हेल्प द मैनेजर रिकॉग्नाइज ट्रेनिंग नीड्स। ऐसे लोगों के लिए मैनेजर एक के लिए हेल्पफुल होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक प्रकार से महत्वपूर्ण रेखा है, महत्वपूर्ण पार्ट है, जहां पर वो एक एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई करके यदि कोई भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, नेगेटिव एस्पेक्ट डेवलप हो रहे हैं या उसकी स्किल्स कम हो रही हैं, तो उन स्किल्स को वो अच्छी तरह से डेवलप करने के लिए वो ट्रेनिंग नीड्स उपलब्ध करा। Then organizational evaluation. Organization evaluation का मतलब होता है evaluation often look at whether goals and objectives are being met. जो objective और goal जो बनाए हैं organization के अंदर, वो उनकी तरफ से evaluate करता है कि वो completely achieve हो रहे हैं या नहीं। तो organization goal. Manager will evaluate the factors that may contributing or to failure of organization goal. उन फैक्टर्स को फाइंड आउट करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल के अंदर फेलियर लाते हैं, मतलब कभी भी अचीव नहीं हो पाते, उनके क्या फैक्टर्स हैं, व्हाट आर द फैक्टर, व्हाट आर द रीजन ही विल फाइंड आउट ड्यूरिंग हिज इवैल्यूएशन। सो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन इवैल्यूएशन। So here next we'll see the already principles are covered. Next is the factors influencing evaluation in the management. मैनेजमेंट के अंदर कुछ फैक्टर जो होते हैं जो हमारे इवैल्यूएशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि आपकी वर्क नॉलेज है, वर्क क्वालिटी है, कम्युनिकेशन एबिलिटीज, कमिटमेंट लेवल, टीम वर्क स्किल एंड रेटिंग। वर्क क्वालिटी डिपेंड्स ऑन द वर्क क्वालिटी। वर्क क्वालिटी यदि आपकी बहुत डाउन है तो उससे इवैल्यूएशन पे और क्वालिटी पे डिपेंड करता है। एक वर्क क्वालिटी हायर लेवल पे होती है, एक लोअर लेवल पे होती है क्वालिटी, हायर और लोअर और मीडियम लेवल, एवरेज लेवल। तो ये वर्क क्वालिटी है, एक पुअर क्वालिटी है, एक स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी है, उसमें भी डिपेंड करता है। वर्क नॉलेज उसकी नॉलेज पे डिपेंड करता है कि हायर सीनियरिटी एंड जूनियरिटी क्या है, उसकी नॉलेज क्या है, नॉलेज स्किल्स जो है उन पर भी डिपेंड करता है। कम्युनिकेशन एबिलिटीज क्या होती है, इसकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज किस तरह की है। ठीक है,
whether it is satisfactory or unsatisfactory. Communication abilities become satisfactory or unsatisfactory for the other employee. तो कमिटमेंट लेवल का मतलब होता है हम कितना कमिटमेंट होते हैं उस काम के प्रति। ठीक है, हमें जो काम दिया गया है, डेलीगेट किया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी गई है, हम उसके प्रति कितने कमिटमेंट रहते हैं, तो कमिटमेंट लेवल को डेवलप। टीम वर्क स्किल्स का मतलब होता है कि व्हेन वी आर अचीविंग द गोल एंड गोल शुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय ए बेटर, वी शुड हैव द बेटर स्किल्स। टीम वर्क के अंदर बेटर स्किल्स होती है। विदाउट टीम वर्क स्किल्स वी कैन नॉट अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो रेटिंग, वी हैव टू रेट द वर्क परफॉर्मेंस। जो वर्क परफॉर्मेंस होती है उसको रेटिंग डे बाय डे। तो उससे यदि जो स्ट्रेंथ है और वीकनेस है उसका पता लग जाता है। यदि वीकनेस ज्यादा है तो उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है, तो उसके लिए हम प्लान करते हैं कि उसको किस तरह एजुकेट कर। सो दिस इज द वन ऑफ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इवैल्यूएशन इन द मैनेजमेंट। So next we'll see the techniques, methods of performance evaluation. मतलब कुछ टेक्निक्स होती हैं, मेथड्स होते हैं जो evaluation के अंदर होते हैं, परफॉर्मेंस evaluation करते हैं। There are some of the important techniques and methods are management by objective method, critical incident method, behaviorally anchored rating skill method, behavioral observation skill method, 360-degree performance appraisal method, checklist and weighted checklist method, graphing rating scales, comparative evaluation method, performance test and observation method, field review method, forced choice method, forced distribution method, EG evaluation method. These total techniques, 13 techniques we have to follow in the performance evaluation. And other performance evaluation methods जो है आपके self evaluation है, आपका confidential records, cost accounting method, psychological appraisal. These are others performance appraisal, performance evaluation. So very important for your exam is very techniques method है आपके, जैसे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव पे शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है कई बार, कई जो है आपके जो बहुत ज्यादा आपको ले जाते हैं, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम आल्सो. So next we'll see the management by objective method, MBO. मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव मेथड हम क्यों कहते हैं? हम इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि एक प्रकार से बेस्ट मेथड होता है किसको, कि एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को जज करने की, मतलब एम्प्लॉइज की जो परफॉर्मेंस होती है स्किल को जज करने के लिए एक बहुत बढ़िया मेथड है, जहां पर मैनेजर क्या कर और एम्प्लॉय जो होते हैं एक ऑब्जेक्टिव के अंदर काम करते हैं. दे आर सेटिंग द ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और उसके बाद उस एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को पीरियोडिकली एवरी ईयर उसको एवेल्युएट किया. इज द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. इसका मतलब होता है कि बहुत बढ़िया मेथड है ये, जो एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को असेस करना, जज करने के लिए. यहाँ पर मैनेजर क्या करता है कि एम्प्लॉइज के लिए ऑब्जेक्टिव बनाता है, गोल्स बनाता है, उसके बिहाफ पे एम्प्लॉय काम करता है और उसको पीरियोडिकली मैनेजर उसको इवैल्यूएट करता है. दिस इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. आफ्टर गोल इज अचीव, यदि गोल अचीव हो जाते हैं, एम्प्लॉइज आर आल्सो रिवॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट. किस तरह का रिजल्ट रहता है, रिजल्ट अच्छा रहता है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या मैनेजर के द्वारा उसको रिवॉर्ड. ठीक है, सो दिस इज द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट विल सी द क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड. क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड का मतलब होता है कि मैनेजर राइट डाउन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव बिहेवियरल परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय. एम्प्लॉय काम कर रहा है किसी भी एस्पेक्ट के अंदर, उसकी जो नेगेटिव और पॉजिटिव बिहेवियरल परफॉर्मेंस है उसको वो एक पेपर में लिखता है. ठीक है, उसके बाद उसका एक प्लान करता है, डेवलप करता है, और उसका जो असेसमेंट होता है, एवरी ईयर असेसमेंट होता है, उसको सबमिट कर, असेसमेंट जो होता है एम्प्लॉय का, उसको उसकी फाइनल रिपोर्ट बना करके सबमिट कर. विच इज डन थ्रू द परफॉर्मेंस पीरियड एंड फाइनल रिपोर्ट इज सबमिटेड एज असेसमेंट ऑफ द एम्प्लॉय. क्लियर हो गया? इसका मतलब है कि मैनेजर एक होता है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेवियरल परफॉर्मेंस होती है एम्प्लॉय की, उसको राइट डाउन करता है, उसके फाइनल प्रिंट तैयार करता है, उसको सबमिट करता है, जिससे एम्प्लॉय की असेसमेंट का हमें पता लगता है. दिस मेथड हेल्प द एम्प्लॉय इन मैनेजिंग देयर परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी ऑफ
यदि उसके अंदर नेगेटिविटी आती है, कोई वेरिएंस आता है, तो उसके बारे में जो मैनेजर होता है या ऑर्गेनाइजेशन होती है उनसे डिस्कस करते हैं, तो वो उसकी जो वीकनेस होती है उसको वो धीरे धीरे इम्प्रूव करता है, क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, क्वालिटी बढ़ती के अंदर, और जो नेगेटिविटी है उनको कम करता है। नेक्स्ट जो है बिहेवियरली एनकोड रेटिंग स्केल मेथड, BARS. So it is used to describe a rating of the employee performance. यहाँ पर क्या है, पे पर्सन को रेट किया जाता है, रेट ऑफ द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, जो एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस होती है उसको रेट किया जाता है, जो फोकस करता है उसकी स्पेसिफिक बिहेवियर, जो कि एक प्रकार से इंडिकेटर होता है फॉर इफेक्टिव और इनइफेक्टिव परफॉर्मेंस। एक इनइफेक्टिव और इफेक्टिव परफॉर्मेंस का एक इंडिकेटर होता है जो उसके स्पेसिफिक बिहेवियर को दर्शाता है, और उसके दर्शाने के बाद उसको एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को हम क्या करते हैं, रेट करते हैं। दिस मेथड इज यूजुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू अदर मेथड। ये दो प्रकार की कंडीशन अदर मेथड से बना है ये, जैसे कि जस्ट लाइक रेटिंग स्केल एंड क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक ऑफ द एम्प्लॉय, देयर आर टू मेथड्स आर अप्लाइंग इन द this method is rating scale and critical incident technique. Already we have discussed regarding the critical incident technique. Rating का मतलब होता है we have to rate the client, and critical का मतलब होता है नेगेटिव और पॉजिटिव बिहेवियर को हम क्या करते हैं, राइट डाउन करते हैं या उसकी लिस्ट बनाते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है। एंड रेटिंग के अंदर वी हैव टू रेट द, तो रेटिंग इसको कहते हैं बिहेवियरली एनकोड रेटिंग स्केल मेथड, BARS. Now we'll see the behavioral observation scale method, BOS. Behavioral observation scale में यहाँ पर एक पता लगता है ना, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन स्केल, किसी भी पर्सन के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए हम एक ऐसी स्केल बनाते हैं, उस स्केल के बिहाफ पे हम उसको ऑब्जर्व। So it is defined as frequency rating of the critical incident which employees has performed over a specific duration in the एक particular duration होता है, उस duration के अंदर ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एम्प्लॉय को की परफॉर्मेंस को रेट किया जाता है। डिफाइंड एज द रेटिंग ऑफ द क्रिटिकल इंसिडेंट। क्रिटिकल इंसिडेंट होते हैं उनको पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, क्रिटिकल इंसिडेंट का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेवियर एस्पेक्ट ऑफ द बिहेवियर ऑफ द पर्सन ड्यूरिंग हिज एम्प्लॉयमेंट। So it can be performed during the specific duration in the, so that can be behavioral observation skill. So it was developed because methods such as graphing rating skill, graphing करते हैं उसको, bars होता है BARS, bars depends on the behavior judgment made by the supervisor about them, employees के द्वारा एम्प्लॉइज के बारे में सुपरवाइजर के द्वारा एक जजमेंट होता है जिसको बार्स पे डिपेंड करता है, और एक बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग स्केल जो होता है उस पर, और ग्राफिंग रेटिंग स्केल पे निर्भर करता है। ये दो मेथड है जो बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन स्केल मेथड के अंदर आते हैं। Now we'll see the 360 performance appraisal method. 360 degree performance appraisal method का मतलब होता है it is a system or process where the employees receive some performance feedback which are confidential from coworkers. मतलब 360 डिग्री परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि जो हमारे साथ कोवर्कर होते हैं, हमारे साथ जो काम करते हैं, वही जो अदर एम्प्लॉय, वो क्या करते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस के बारे में क्लू देते हैं, फीडबैक देते हैं कि आप ये बहुत स्लो कर रहे हो, आपको इस तरह करना चाहिए, आप इस तरह नहीं कर रहे हो, ठीक है, आपको इस तरह इसको अपने बिहेवियर को इस तरह करेक्ट करना चाहिए, आपको जो आपको जो प्लान दिया है उसको प्रॉपर्ली आप उसको फॉलो करो, उसको करो। एक सिस्टम, एक प्रोसेस जिसमें कि क्या करता है कि वो फीडबैक लेता है, परफॉर्मेंस हासिल लेता है कोवर्कर, ठीक है, जो कोवर्कर जो भी इसमें मैंने थोड़ा 360 परफॉर्मेंस इट इज सिस्टम और प्रोसेस वेयर द एम्प्लॉय रिसीव सम परफॉर्मेंस फीडबैक, मतलब मैनेजर जो है उससे परफॉर्मेंस फीडबैक प्राप्त, जो एक कॉन्फिडेंशियल होता है फ्रॉम द कोवर्कर। वी कैन नॉट डिस्कस विद द कोवर्कर, इज द कोवर्कर आर नॉट रिलेटेड टू द एनी एम्प्लॉय। Manager and co-workers, subordinates are correlated with each other and they can discuss their own aspect of the thing, and we cannot take all the things and take out all of the things to other co-workers. It should be confidence. So this process is conducted by the manager and subordinates who through the 360 degree measure the certain factors about the employee। 360 degree को use करते हुए यहाँ मैनेजर and subordinates
के अंदर ये प्रोसेस जो होता है वो कंडक्ट होता है, ठीक है, अबाउट द एम्प्लॉयज को। These are the behavior and competence skills such as listening, planning, goal setting, teamwork, character and leadership effectiveness. तो लिसनिंग करना, प्लानिंग करना, गोल सेटिंग डेवलप करना, टीम को कैसे वर्क करना है, कैरेक्टर उसके किस तरह के कैरेक्टर डेवलप होते हैं, बैड कैरेक्टर, गुड कैरेक्टर है, लीडरशिप इफेक्टिवनेस है, एक बेटर लीडरशिप को डेवलप करने के लिए क्या जरूरी है, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस होना बहुत जरूरी है। There should be skills are maintained by the each and every employee those who are working on organizational goal and object. नेक्स्ट वी सी द चेकलिस्ट एंड वेटेड चेकलिस्ट मेथड। चेकलिस्ट मेथड क्या होता है? चेकलिस्ट का मतलब होता है कि हम किसी भी एक परफॉर्मा होता है, उस परफॉर्मा के बिहाफ पर हम क्या करते हैं, आगे चेकलिस्ट करते हैं, जो हमारे अंदर आती है उन चीजों को जानते हैं कि हमको कर सकते हैं, हम चेक इस तरह कर देते हैं, चेकलिस्ट कर देते हैं। इस तरह का आगे एक टिक मार्क होता है, टिक कर देते हैं, और जो नहीं होता तो नहीं करते, क्रॉस करते। तो उस प्रकार का हमको चेकलिस्ट में कहते हैं। वेटेड लिस्ट चेकलिस्ट का मतलब होता है कि उसको नंबरिंग में देते हैं। यहाँ पर तो हम क्या करते हैं, टिक करते हैं, और वहाँ पर क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, किसी भी आपको स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, ठीक है। तो ये होते हैं, उनके अंदर 1 2 3 मार्किंग करते हैं, उसके लिए जो भी स्कोर आता है उसको हम के अंदर वेटेड चेकलिस्ट करते हैं। सो दिस चेकलिस्ट का मतलब होता है बाय द टिक मार्क, एंड वेटेड चेकलिस्ट का मतलब होता है कि जो भी है उसको नंबरिंग में रेट करते हैं। सो चेकलिस्ट मेथड कंप्राइजेस द लिस्ट ऑफ सेट द ऑब्जेक्टिव एंड स्टेटमेंट अबाउट एम्प्लॉयज बिहेवियर। एक एम्प्लॉय के बिहेवियर को बारे में स्टेटमेंट्स होते हैं, और कुछ ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उनकी लिस्ट होती है, उसको किस तरह करना है। फॉर एग्जांपल लीडरशिप स्किल्स होती हैं, ऑन टाइम डिलीवरी, इनोवेशन होता है, इस प्रकार का किस तरह वो एक प्रकार से कितना डायनेमिक स्किल्स द पर्सन शुड, मतलब डायनेमिक स्किल्स होती है जो पर्सन के अंदर प्रेजेंट होती है, एब्सेंट होती है, वो कितनी है, वो उस चीज को ऑन टाइम डिलीवर कर रहा है। लीडरशिप स्किल्स कौन सी है, everything should be on the performance. So if appraiser believes that employee possesses statements, checklist reports, ethics in front of it. क्लियर होगा? यदि अप्रेजर को लगता है कि एम्प्लॉय इन चीजों को पॉजेसेस कर रहा है, ट्रेड्स को पॉजेसेस कर रहा है, तो हम उसको चेकलिस्ट के अंदर इसका टिक कर देते हैं। इफ ही थिंक, मतलब जो अप्रेजर होता है, यदि उसको इस ट्रेड में वो एलिजिबल नहीं है, मतलब वो इन चीजों को नहीं कर सकता, तो उसको ब्लैंक छोड़ देता है या उसको क्रॉस। Weighted checklist is the variation of the checklist method where its value is allotted to the each question. मतलब प्रत्येक क्वेश्चन में उसकी वैल्यू क्या होती है each क्वेश्चन के अंदर वैल्यू allotted होती है। वैल्यू ऑफ द each question can differ based on its importance. The total score from the checklist is taken into consideration for evaluating employee performance. Here this method is time consuming, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, कॉम्प्लेक्स भी है, more biased भी है। It is widely used for the performance, बहुत ज़्यादा यूज होता है परफॉर्मेंस एनालिसिस, उसको कहते हैं वेटेड चेक। Next we'll see the graphic rating scale, GRS. In the graphic rating scale, it is most frequently used method. ये बहुत ज्यादा काम में आने वाला मेथड है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होता है। A simple printed form enlists rates of the employees required for the completing task efficiently. जो भी टास्क दिए जाते हैं वो उन टास्क, उन फॉर्म के अंदर टास्क होते हैं, उनको वो कंप्लीटली क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, नहीं कर रहा है। एक सिंपल फॉर्म होता है, उसके अंदर रेट्स होते हैं एम्प्लॉइज के अंदर, किस तरह के रेट्स हैं, जो उन टास्क को, वो जो टास्क दिए हुए हैं, रेट्स दिए हुए हैं, उनको वो कंप्लीटली एफिशिएंटली फुलफिल कर रहा है। A rating scale is adopted and implemented for judging each trait of the employee. मतलब प्रत्येक एम्प्लॉइज के ट्रेड को जज करने के लिए एक रेटिंग स्केल अडॉप्टेड होता है और इम्प्लीमेंटेड, इसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, अडॉप्टेड भी करते हैं, जज करने के लिए एक एम्प्लॉय के ट्रेड। इस मेथड के द्वारा ईच कैरेक्टरिस्टिक्स इज गिवन इक्वल वेट, मतलब समान वजन दिया जाता है। एवेल्युएशन में भी सब्जेक्ट ना कि ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्टिव होता है। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द ग्राफिंग रेटिंग स्किल जो है, ये कौन सा इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव इज द राइट आंसर।
So comparative evaluation method क्या है? Comparative evaluation method, there are two methods, simple ranking method, paired comparison. दो प्रकार के मेथड हैं, सिंपल रैंकिंग मेथड, पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। सिंपल को हम कहते हैं स्टेट रैंकिंग मेथड। सिंपल स्टेट रैंकिंग मेथड क्या है? एम्प्लॉय इज रेटेड बाय द कंपैरिजन। कंपैरेटिव का मतलब होता है दो ग्रुप को कंपैरिजन। सो एक सिंपल भी हम यूज करें, पेयर्ड भी यूज करें। सिंपल के अंदर, सिंपल फॉर्म के अंदर स्टेट रैंकिंग फॉरवर्ड होता है मेथड। यहाँ एम्प्लॉय इज रेटेड बाय द एवेलुएटर ऑन स्केल ऑफ बेस्ट टू, मतलब जो एम्प्लॉय होता है उसको रेट किया जाता है इसके द्वारा, एवेलुएटर के द्वारा, जो एक इस प्रकार से स्केल होती है जो यूज होती है फ्रॉम द बेस्ट टू वर्स्ट, मतलब अच्छे से और खराब तक उसकी स्केल है कि खराब से कितना उसका जो स्केल है वो कम हो रहा है, डाउन हो रहा है, डिसेंडिंग और फ्रॉम द असेंडिंग, we can apply. However, evaluator may be biased and may not be judged overall performance. इसके द्वारा ओवरऑल परफॉर्मेंस को जज नहीं किया जा सकता, ये बायस फॉर्म में होता है। ठीक है, इसमें जो फिक्स क्राइटेरिया होता है वो एब्सेंस होता है। दिस काइंड ऑफ इवैल्यूएशन में भी मोर ओपिनियन बेस्ड देन फैक्ट बेस्ड। फैक्ट बेस्ड की तुलना में ये बहुत ज्यादा ओपिनियन बेस्ड होता है, अधिक ओपिनियन बेस्ड होता है। पेयर्ड कंपैरिजन मेथड का मतलब होता है ओवरऑल इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होती है उसको ओवरऑल हम उसको डायरेक्टली कंपेयर करते हैं विद अदर क्राइटेरिया, जो दूसरे क्राइटेरिया बनाए हैं उन क्राइटेरिया के उस पर्सन को की परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। मतलब एक आपका जो लेवल है उस लेवल के कुछ ऐसे क्राइटेरिया बने हुए, उस लेवल के क्राइटेरिया आपके स्टैंडर्ड क्राइटेरिया, उन स्टैंडर्ड क्राइटेरिया को अकॉर्डिंग टू आप अपने आप को फुलफिल करते हैं उन चीजों के अंदर, तो उसको ओवरऑल जज किया बाय द पेयर्ड कंपैरिजन मेथड के द्वारा। तो while some employees emerge as career front runner, इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक लैगिंग बिहाइंड होता है, एक फ्रंट रनर होता है। कई बार कंपनियों में देखते हैं, कई बार तो सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आती है कि कुछ जो कंपनीज होती है उसमें प्रमोशन फंड जो है वो रुक जाते हैं। ठीक है, कुछ कम होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो क्लियर फ्रंट रनर जो होते हैं और कुछ जो होते हैं वो लैगिंग बिहाइंड होते हैं, उन चीजों पर फोकस नहीं करते, तो पीछे सिर्फ कॉपी पेस्ट होते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। ऐसे लोग होते हैं वो लैगिंग बिहाइंड होते हैं, और जो फ्रंट रनर होते हैं जो आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जाते हैं, और वो कभी भी कंपनी सोचते नहीं, वो दूसरी कंपनी को कहीं ना कहीं पकड़ लेते हैं और फिर वहाँ या हायर पैकेज इस तरह का होता है। जो जिनके अंदर क्वालिटी है, स्किल्स है, दे आर द फ्रंट रनर, और जिनके पास क्वालिटी नहीं है दे आर ओनली कॉपी पेस्टर, दे आर कमिंग ऑन बैक ऑफ front run. So here performance test and observation method. Performance test and observation method क्या होता है? It deals with the testing the knowledge or skills of the employees. किसी भी employees की knowledge को और skills को टेस्ट किया जाता है। परफॉर्मेंस टेस्ट के द्वारा किसी भी पर्सन की नॉलेज और स्किल्स को क्या किया जाता है? टेस्ट किया। Implemented in the form of written test or can be based on actual presentation of skills. दो तरीके से होता है। एक तो रिटन टेस्ट के अंदर होता है और एक एक्चुअल प्रेजेंटेशन, जो प्रेजेंटेशन ओरली, एक ओरली और एक नॉन वर्बली और नॉन वर्बली मेथड यूज होता है इसमें। जो नॉन वर्बली है वो रिटन टेस्ट हो गया, और वर्बली जो है प्रेजेंटेशन के द्वारा वो ह्यूमन रिसोर्सेज। जैसे कि हम देख सकते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट के अंदर आपको थ्योरेटिकल एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल बेसिस होता है, रिटन टेस्ट होता है वो एक आपकी बड़ी एग्जाम, और एक्चुअल प्रेजेंटेशन ऑफ द स्किल्स होते हैं वो किसी भी प्रोसीजर को हम इस तरह कर रहे हैं, तो वो एक प्रकार से प्रैक्टिकल फॉर्म हो गया। टेस्ट में भी कंसीव बाय द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। जो टेस्ट होता है कौन करता है इसको? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट करता है, जो कंडक्टेड बाय रिलायबल एवेलुएटर। जो रिलायबल एवेलुएटर होता है उनको पता है किस तरह की जो है क्राइटेरिया है उनको हमें फुलफिल करना है, उन क्राइटेरिया को जानता है। ठीक है, so that he will conducted by the reliable evaluator and who has in depth knowledge about the field of test. Broad knowledge. So there can be bias performance evaluated on the presentation of this.
बायस कब आता है? जब हम हम किसी भी स्किल्स को परसेंटेज बेसिस पर करते हैं, ना कि थ्योरेटिकल बेसिस। टेस्ट भी बहुत जरूरी है और एक्चुअल प्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। जो स्किल्स होती है प्रेजेंटेशन के द्वारा इवैल्यूएशन करने पे बायस आ सकता है। हाउएवर ये रिटन टेस्ट कैन बी रिलायबल मेथड टू मेजर द नॉलेज। वो दोनों चीज आ गई आपकी, थ्योरेटिकल बेसिस और प्रैक्टिकल बेसिस। थ्योरेटिकल बेसिस कहता है कि ये एक बहुत अच्छा मेथड है, रिलायबल मेथड है जिसकी नॉलेज को असेस किया जाए। बट प्रैक्टिकल जो नॉलेज है, ठीक है, उसको प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट है हम उसको नॉलेज को असेस नहीं कर सकते। टेस्ट आल्सो बी एनेबल मैनेजमेंट टू चेक पोटेंशियल ऑफ द एम्प्लॉय। इस टेस्ट के द्वारा किसी भी एम्प्लॉयज की पोटेंशियल डायनामिक पावर को चेक किया जा सकता है, जज किया जा सकता है, स्किल्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, नॉलेज को आइडेंटिफाई। नेक्स्ट आता है आपका फील्ड रिव्यू मेथड। फील्ड रिव्यू मेथड के अंदर है इट इज कंडक्टेड बाय द समवन आउटसाइड द एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट। ये किसी बाहर वाले एम्प्लॉय जो डिपार्टमेंट होता है उसके द्वारा कंडक्ट होता है। समवन आउटसाइड द एम्प्लॉय डिपार्टमेंट मतलब मेरा डिपार्टमेंट दूसरा है और किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मैं यदि आइडेंटिफाई करूं या जाऊं तो दैट इज वन ऑफ द फील्ड रिव्यू मेथड। एग्जांपल, इफ एन एम्प्लॉय इज वर्किंग फॉर इन द मैन्युफैक्चरिंग टीम देन समवन हु डील्स विद हिम regularly say personnel will conduct the appraisal. The most cases the HR department undertakes the evaluation। HR department तो ये अपना एक डिपार्टमेंट जो होता है उसमें वो नहीं है। फोर्थ चॉइस मेथड के अंदर इज दिस मेथड appraiser is asked to choose from two peering statement which may appear equally positive and negative। इस मेथड के द्वारा appraiser जो होता है दो पेयरिंग स्टेटमेंट होती है, ठीक है, जो इक्वली पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है। एक तो पॉजिटिव वर्क हार्डर और दूसरा होता है वर्क स्मार्टर। पॉजिटिवली और नेगेटिवली वर्क हार्डर और वर्क स्मार्टर। द अप्रेजर सेलेक्ट स्टेट, जो अप्रेजर होता है वो स्टेटमेंट सेलेक्ट करता है विदाउट हैविंग नॉलेज दैट शुड बी फेवरेबल और अनफेवरेबल। So this method works in the company। जो कंपनी जो होती है वहाँ पे काम होता है कि where appraiser shows a tendency to under evaluate और over evaluate them। जो अंडर एवेल्युएशन के अंदर आता है और ओवर एवेल्युएशन के अंदर आता है, वहाँ पर उसकी अप्रेजर उस कंडीशन में उसको एवेल्युएट करता है। इट इज वेरी कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट एंड डज नॉट सर्व द पर्पस ऑफ डेवलपिंग एन एम्प्लॉय। मतलब ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है जिसमें कि इसका एम्प्लॉयज को डेवलपमेंट करने के लिए कोई भी इसका पर्पसफुल इफेक्ट नहीं है। इट इज आल्सो फ्रस्ट्रेट अप्रेजर ही डोंट नो द राइट ऑप्शन। मतलब उसको जो अप्रेजर होता है उसको फ्रस्ट्रेट बहुत ज्यादा करता है, इसलिए उसको ये पता नहीं होता है कि कौन सा ऑप्शन मुझे यूज करना चाहिए। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। So in this method, appraiser rates the employee according to the specific distribution। इस मेथड के द्वारा क्या होता है, appraiser employee को रेट्स करता है स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया उसके अंदर डेवलप किए गए एम्प्लॉयज के अंदर उनको वो रेट्स करता है। तो एग्जांपल जैसे हम लें कि आउट ऑफ ए सेट ऑफ 5 एम्प्लॉयज, मतलब एक प्रकार से 5 एम्प्लॉय का एक सेट होता है जिसमें 2 होते हैं जो हाई रेटेड होते हैं और 2 होते हैं एवरेज होते हैं, जबकि एक लो कैटेगरी। उस तरह उसको स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम उसको रेट कर सकते हैं। So this method has several benefits। इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट है। Tries to eliminate the leniency and central tendency of the appraiser। ये वीकनेस एलिमिनेट, एक बहुत ज्यादा वीकनेस है, एक दयालु व्यक्तित्व को क्या करता है, एलिमिनेट करता है। सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द अप्रेजर, जो उसके अंदर एक अंतरात्मा होती है किसी भी अदर एम्प्लॉय के बारे में, उसको वो कम करता है, एलिमिनेट करता है। जो ये मेथड जिसको कहते हैं फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसमें कोई भी एजी इवैल्यूएशन मेथड। एजी इवैल्यूएशन मेथड का मतलब होता है अप्रेजर राइट्स एंड एलैबोरेट स्टेटमेंट अबाउट द एम्प्लॉय बीइंग इवैल्यूएटेड। अप्रेजर इसमें क्या करता है, स्टेटमेंट को एलैबोरेट करता है जो एवेल्युएशन के अंदर किसी भी एम्प्लॉय को एवेल्युएट किया गया। He mentions the employee's strength and weakness। उसके बाद वो क्या करता है, उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ को क्या करता है, ऑप्शन मेंशन करता है। He also suggests way to improve his performance and appreciate good quality।
ये सजेस्ट भी करता है कि आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किस हद तक करना चाहिए। उसके बाद उसकी गॉड क्वालिटीज को भी अप्रिशिएट करता है। दिस ऐसे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द अप्रेजर अलोन और टुगेदर विद अप्लाई। इस ऐसे को कौन तैयार करता है? अप्रेजर करता है अलोन या किसी दूसरे एम्प्लॉय के साथ मिलकर के भी इसको तैयार किया जा सकता है। इट हेल्प्स अप्रेजर टू फोकस एरियाज, कुछ एरियाज होते हैं उन पर अप्रेजर फोकस करता है दैट एक्चुअली नीड टू इम्प्रूव, जहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की बहुत जरूरत है, वहाँ पर उसको उन एरियाज को फोकस। इट हाईली टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है सर्चिंग के मैथड। So this is the one of the AG evaluation method. So next हमारा ये टॉपिक अभी कंप्लीट हो चुका है। Now आपका आएगा नेक्स्ट टॉपिक क्या था? सेल्फ evaluation method. Now we want to stop here. If any doubt regarding this and can we will have any questions, it should be